नमस्कार, मेरा नाम है दीपू शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। दर्शकों, फिलहाल आज हम अगले आधे घंटे 40 मिनट तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। एक बेहद जरूरी मुद्दा है जिस पर बात की जानी बहुत जरूरी है। कोरोना काल में जेई और नीट की परीक्षा हो रही है। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये बता दें कि पहले से 6 सितंबर तक यानी 1 to 6 सितंबर तक जेई मेंस की परीक्षा होगी और 13वीं सितंबर को नीट एग्जाम्स होने की बात है। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब 25 लाख के करीब जो बच्चे हैं वो इसमें अपनी भागीदारी लेंगे। दूसरा इसमें जो पॉलिटिकल एक एंगल है वो ये बन रहा है कि विपक्षी पार्टियां और करीब 11 राज्यों के मुख्यमंत्री परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाने के बारे में लगातार मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के विकल्प पर भी बात की जा रही थी। हालांकि आज 6 राज्यों के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की है। तो अब कुल मिला के ये जो मुद्दा है ये भाजपा या केंद्र सरकार बनाम विपक्ष का बनते जा रहा है। हालांकि ये मुद्दा विद्यार्थियों का है, उन विद्यार्थियों का जो जेई और नीट की परीक्षा देने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पैनलिस्ट मौजूद हैं, मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों का तारुफ करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर हिमाद्री शेखर चक्रवर्ती हैं जो पाथफाइंडर हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। साथ ही हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर पराग विश्वास मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार जी, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे डॉक्टर हिमाद्री शेखर चक्रवर्ती जी कि ये जो स्थिति बन रही है इस वक्त, क्या कितना सही और कैसे आप देख रहे हैं जेई मेंस और नीट की परीक्षा होने को? দেখুন, প্রথমত জেই এবং নিটের এক্সাম অনেক দিন ধরে ডেফার হয়ে পিছিয়ে আসছে। এটাতে সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে স্টুডেন্টদের মধ্যে। এখন এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্টুডেন্টদের সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটির কথা ভেবে ম্যাক্সিমাম যা করা যায় সেটা করা উচিত গভর্নমেন্টের। তো এখন সুপ্রিম কোর্ট, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট যেরকম নির্দেশ দিয়েছেন যে 1 to 6 সেপ্টেম্বর জেই মেন এবং 13 সেপ্টেম্বর নিট এবং 27 সেপ্টেম্বর জেই অ্যাডভান্সের এক্সাম যেমন শিডিউল করা হয়েছিল সেভাবেই নেওয়া উচিত। এখন সেই রকম ভাবেই এনটিএ যারা এই ধরনের এই এক্সাম গুলো অর্গানাইজ করে, এনটিএ এবং গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে, স্পেশালি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে সেরকম বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি কি এটা নিয়ে আরো ডিটেলসে नहीं सर, आप किस तरह से आप ये बताएं सर कि फिलहाल जो जेई मेंस और नीट की परीक्षा होनी है ये कितना सही लगता है आपको? किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार ऐसे बच्चों से भी जुड़े रहते हैं जो परीक्षा देना चाह रहे हैं, ईगर हैं। ব্রিফলি যদি বলতে হয় তাহলে এটা সঠিক সিদ্ধান্তই হয়েছে। কারণ প্রথমত অনেকগুলো কারণ আছে, অনেকগুলো বিষয় আছে, অনেকগুলো শেডস আছে ব্যাপারের মধ্যে। প্রথমত আপনাকে যদি আমি ওয়ান বাই ওয়ান জিনিসগুলো ব্রিফলি ক্লিয়ার করি তাহলে দেখা যাবে যে যে সময়ে যেই নেওয়ার কথা ছিল বা নিট নেওয়ার কথা ছিল সেখান থেকে ক্রমাগত দুবার চেঞ্জ করার পরে আমরা মানে এনটিএ এরকম একটা ডেট ফিক্স করেছে। তো হঠাৎ করে এই অগাস্ট পেরিয়ে সেপ্টেম্বরে যখন আমরা অ্যাপারেন্টলি ভাবছি যে দেশে সব থেকে বেশি পরিমাণে কোভিড-19 অ্যাফেক্টেড হচ্ছে, সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অনেকের মনে হচ্ছে যে এনটিএ কেন এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিল এই সময়টাতে, আমরা আরো পিছিয়ে যেতে পারতাম। যেটা মেইনলি অনেক স্টেট গভর্নমেন্ট বা অনেক স্টুডেন্ট, অনেক গার্জেন, অনেক সাধারণ মানুষও যেটা ভাবছেন যে এখন তো আমরা পার ডে 50 to 75,000 আমরা কোভিড-19 অ্যাফেক্টেড পেশেন্ট পাচ্ছি। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে সেপ্টেম্বরে করা কতটা যুক্তিযুক্ত। প্রথমে বুঝতে হবে যে আমাদের হাতে এরকম কোনো ইনফরমেশন নেই যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি যে এই কোভিড-19 সিচুয়েশন উইল গেট বেটার উইদিন নেক্সট 1 month or 2 months। সেরকম কোনো রকম ইনফরমেশন কোনো জায়গা থেকে আমাদের কাছে নেই।
এমন হতেই পারে যে আজকের যে সিচুয়েশন আমরা দেখতে পাচ্ছি 75,000 পার ডে, বা আজকেই হয়তো 77,000 ছিল কিছু একটা, যেটা ইন্ডিয়ার পপুলেশনের নিরিখে অতটা বেশি মনে হয় না, যতটা আমরা সংখ্যাটা দেখে আমাদের যতটা মনে হচ্ছে ততটা জি আসলে হয়তো নয়। এই সংখ্যাটা কিন্তু ক্রমশ বাড়বে। এই সংখ্যাটা কমার কোনো সম্ভাবনা এই মুহূর্তে আছে বলে কোনো মেডিকেল জায়গা থেকেও বলা হচ্ছে না। জি যে ভ্যাকসিনেশনের কথা আসছে, সেই ভ্যাকসিনেশন ইন্ডিয়াতে আসতে এবং সেটা আমাদের जी 140 जी কোটি মানুষের কাছাকাছি जी পৌঁছতে बिल्कुल बिल्कुल অনেক बिल्कुल টাइम बिल्कुल লাগবে। सही बात कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। पराग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी अभी डॉक्टर साहब ने ये बात कही कि कोई श्योरिटी नहीं है कि अगले 1-2 महीने में हम पूरी तरह से कोविड मुक्त हो ही जाएंगे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ऐसे में परीक्षा को आगे बढ़ाना उचित नहीं लग रहा है विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से। तो एक सवाल ये भी यहाँ पर बनता है पराग जी कि शुरुआती दिनों में ये कहा गया कि 21 दिन अगर हम घरों में रह जाएं तो हमारा देश जो है वो कोविड मुक्त हो जाएगा। ऐसे में ये जो छात्रों के साथ लगातार, वो चाहे नीट जेई मेंस हो या फिर किसी अलग विषय के छात्र हों, ये जो एक असमंजस की स्थिति बन रही है, ऐसे में जेई और मेंस की परीक्षा, जेई मेंस और नीट की परीक्षा लेने को आप कहाँ तक सर सही समझ रहे हैं इस वक्त? देखिए, मैं डॉक्टर चक्रवर्ती के साथ बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पर कि कुछ ही दिनों में वैक्सीन आ जाएगी, इसकी कोई होप हमारे सामने है नहीं, गारंटी नहीं है, होप नहीं कहूंगा मैं, द वर्ड शुड बी गारंटी। लेकिन एक बात आपको याद रखनी होगी कि इस तरह का महामारी, पैंडेमिक सिचुएशन 1918 साल में हुई थी, उसके बाद फिर 2020 में हुई है, 102 साल बाद। मैं ये सवाल करना चाहूंगा, बहुत सारे सवाल हैं, मैं ये सवाल पे सबसे पहले करना चाहूंगा कि आपने शुरू में ही कहा कि 25 लाख बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द नंबर्स एंड डिटेल्स। ऐसे में आपको मालूम ही है कि दूर दराज के इलाकों से बहुत सारे बच्चे आएंगे शहरों में, और एक शहर से दूसरे शहर में भी लोग जाएंगे। जैसे कि अब मैं आपको प्रैक्टिकल समस्या के बारे में बता रहा हूं, काफी बच्चे दिल्ली में जाते हैं, वहां पे रह के वो जेई नीट का प्रिपरेशन लेते हैं। अब ये लॉकडाउन के वजह से, ये स्थिति के वजह से, एग्जाम्स पीछे चल जाने की वजह से वो अपने घरों को वापस आ गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से लोग आते हैं दिल्ली में। दिल्ली में लोग आते हैं नॉर्थ ईस्ट से बहुत ज्यादा, दिल्ली में लोग जाते हैं बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, और हमारे पश्चिम बंगाल या सिलीगुड़ी, नॉर्थ बंगाल से भी। अब वो जाएंगे, उनका ट्रैवल में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगा, ये निर्धारित कौन करेगा? सिर्फ कोविड का समस्या नहीं है, बिहार, असम समेत कई राज्यों में अभी भी बाढ़ का स्थिति खराब है, बाढ़ के चपेट में है। जयपुर, मुंबई और दिल्ली में हम देखे हैं कि बारिश किस हद तक क्या बुरा हाल कर चुका है। इसमें छात्रों को अपने अपने सेंटर पहुंचने में जो कठिनाई होगी, उसको सरलीकरण कैसे किया जाएगा? और एक और चीज है, बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सेंटर में, जो कि दूर में रहते हैं, घर सेंटर से घर उनका दूर होता है। ये आम चीज है, हम भी करते थे, हमारे जमाने में। वो एक दिन पहले ही, रात को ही वो सेंटर में पहुंच जाते हैं, यानी सेंटर के आसपास में कहीं पे होटल में या लॉज में वो रह जाते हैं। देखिए, सिर्फ परीक्षा के 3 घंटे की बात नहीं है। अब वो जब वहां पे जाएंगे, इतने तादाद में जब कंसंट्रेशन होगा, वहां पे क्या स्थिति उत्पन्न होगी? एग्जाम हॉल के अंदर मैं एक और पॉइंट आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, जिसपे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये कहा जा रहा है बार बार, मैं समझता हूँ मिस्टर चक्रवर्ती भी ये कहेंगे थोड़ी देर बाद, कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विल बी फॉलोड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो एग्जाम से पहले और बाद में जो भीड़ इकट्ठा होगी सेंटर के बाहर या पहले छोटे छोटे सेंटर के इर्द गिर्द, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगा। जो बच्चे कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं, जो 2-3 साल एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने के बाद भी जिनको कंटेनमेंट जोन से आना पड़ रहा है, मास्क पहनना पड़ रहा है, अस्थमा की बीमारी है, वो कैसे सहजता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम्स देंगे? 2 साल मेहनत करने के बाद एग्जाम्स के दौरान जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, या आइसोलेशन में है, या रेड जोन में है कि घर के बगल में उनका किसी का कोरोना हो गया,
वो कैसे एग्जाम हॉल में आकर परीक्षा देंगे, सरकार इस बात पर जरा जवाब दे। वो अगर उनका अगर ऐसा हो जाता है, उनका सुरक्षा का गारंटी कौन देगा? और अगर वो कोरोना से प्रभावित होते हैं, अगर वो दूर दराज के इलाके के बच्चे होते हैं, गरीब तबके के होते हैं, तो उनका इलाज का जिम्मेदारी कौन लेंगे? सपोज ममता बनर्जी सही बात बोल रही है, क्योंकि यहाँ से अगर जो दिल्ली जाएंगे बच्चे, वो अगर कोरोना पॉजिटिव होते हैं घर में आके 7-8 दिन बाद, तो उनका जिम्मेदारी कौन लेंगे? दिल्ली सरकार लेगी, केंद्र सरकार लेगी या पश्चिम बंगाल सरकार लेगी? क्योंकि कोरोना के किसी भी इलाज के लिए काफी खर्चा होता है, चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी हो। WHO के मुताबिक अभी कोविड इन्फेक्शन ड्रॉपलेट से एयरोसोल ट्रांसमिशन लेवल पर चल गया है। क्या ऐसे में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मेंटेन करना आपको लगता है संभव होगा? मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, कोरोना काल में जो एग्जाम हुए हैं उनमें एसओपी किस तरह मेंटेन हुआ है, हम लोगों ने देखा है। वहां पे अगर हम जेई और नीट का 25 लाख पराग जी करवाए तो क्या स्थिति हो सकता है? आप लेकिन एक बात और है, गोवा के एजुकेशन मिनिस्टर ने हाल ही में एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि करीब 1.5 लाख बच्चे उनके यहाँ 10वीं और 12वीं की परीक्षा दिए हैं इसी कोरोना काल में, करीब 1.5 लाख बच्चे, और कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। मैं एक चीज आपको बताऊं जी, कल उच्चतम न्यायालय ने मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी लगा दिया। क्यों? जबकि जैन लोगों का किसी समावेश पे छूट दिया गया था। उसके बाद फिर रथ यात्रा को बताया गया कि आप सीमित लोगों को लेकर रथ यात्रा कर सकते हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा। You see, this is a national examination. It is not limited to a particular state or a particular locality. यही तर्क सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, जो खुद डिजिटल हियरिंग कर रहे हैं, पार्लियामेंट का सेशन नहीं हो रही है, सिंबॉलिक पार्लियामेंट सेशन करवाइए ना आप, उसके बाद एग्जाम्स लीजिए, 3 घंटे के लिए करवाइए आप सिंबॉलिक पार्लियामेंट का एक सेशन करवाइए। डॉक्टर साहब, और मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, यहाँ पे एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। आप देखिए, सिर्फ बिहार का स्थिति देखिए, 6 सितंबर तक, आपको पता है या नहीं पता है मुझे मालूम नहीं, 6 सितंबर तक बिहार में लॉकडाउन है। अब बताइए बिहार के बच्चे कैसे परीक्षा देंगे? 38,000 से बढ़ा के बिहार में सेंटर सिर्फ 2 ही राज्यों में बनाया गया है, बाकी राज्यों में नहीं बनाया गया। देश के 38,000 के सेंटर तो बनाया गया, लेकिन बिहार में नहीं बनाया गया। कैसे देंगे? बाढ़ पीड़ित है। मैं सिर्फ एक स्टेट के बारे में कह रहा हूं। आप जब गोवा बोल रहे हैं, मैं अपना पड़ोसी राज्य बिहार के बारे में कह रहा हूं। कंसंट्रेटेड लेवल पे आप कर सकते हैं। यू कैन ऑर्गेनाइज एन एग्जामिनेशन इन योर पर्टिकुलर स्कूल। गोवा इज अ स्मॉल स्टेट, लेकिन देश भर में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के दूर दराज के इलाके हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट मणिपुर, यू हैव टू थिंक अबाउट पंजाब, यू हैव टू थिंक अबाउट चेन्नई, यू हैव टू थिंक अबाउट कश्मीर। हर इलाके के बच्चों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये एक बड़ी बात इस वक्त निकल के आ रही है कि ये किसी छोटे पैमाने पर होने वाली परीक्षा नहीं है, इतने बड़े पैमाने पर हो रही है ये परीक्षा। तो किस तरह से हम ये जो मोबिलिटी 25 लाख विद्यार्थी करीब जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 लाख विद्यार्थी, तो अमूमन उनके गार्जियंस भी होंगे, वो फैकल्टीज भी होंगे जो वहां उस परीक्षा को करवाने जाएंगे, तो हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में वहां पे मॉब जमा हो सकती है। तो कैसे हम बचेंगे ऐसे में? एक्चुअली दिस इज द बिग प्रॉब्लम। এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য এনটিএ ওয়েস্ট বেঙ্গল সহ সমস্ত গভর্নমেন্টের কাছে বলেছে যে স্টেট গভর্নমেন্ট লেভেলে এই ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটা দেখতে হবে, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এর সঙ্গে ইউনিয়ন হেলথ সেক্রেটারি তিনিও কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্টকে বলেছেন যে এই যে কদিন এক্সাম চলবে, সেই এক্সামিনার যারা স্টুডেন্ট আছে, তাদের গার্জেন আছেন, তাদের ট্রান্সপোর্ট ব্যাপারটা দেখতে হবে এবং অ্যাকর্ডিংলি ব্যবস্থা করতে হবে। পরাগজির কয়েকটা কথা আমি শুনে কয়েকটা আমি বক্তব্য রাখতে চাই। 1 নম্বর হচ্ছে, উনি বলছিলেন যে অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টুডেন্ট হয়তো দিল্লিতে পড়াশোনা করে, তো তার পক্ষে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে দিল্লিতে গিয়ে এই মুহূর্তে পরীক্ষা দেওয়া ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, কারণ যেহেতু এই ট্রান্সপোর্টের ব্যাপারটা আছে। তো এনটিএ যেটা করেছে লাস্ট 2 মাস ধরে অন্তত 5 বার সুযোগ দিয়েছে সমস্ত স্টুডেন্টকে তার নিয়ারেস্ট সেন্টার চুজ করার জন্য, এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে নিটের ক্ষেত্রে অন্তত 95
1000 স্টুডেন্ট তারা তাদের এক্সাম সেন্টার চেঞ্জ করে নিয়ারেস্ট সেন্টার করেছে। এবং জেইর ক্ষেত্রে নাম্বারটা আরো বেশি, 6.62 লাখ যারা জেই স্টুডেন্ট তারা তাদের সেন্টার চেঞ্জ করে নিয়ারেস্ট সেন্টার করেছে। এবারে নিয়ারেস্ট সেন্টারটা কোথায়? এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি, তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে জেইতে অলমোস্ট 37,973 জন স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিচ্ছে 15টা সেন্টারে। এই মুহূর্তে সেন্টারের সংখ্যা বেড়েছে দুটো, 13টা সেন্টার ছিল, 13টা সেন্টার যেটা এর আগে যে এক্সাম হয়েছিল সেখান থেকে বাড়িয়ে 15টা করা হয়েছে। ইচ এন্ড এভরি স্টেটেই কিন্তু সেন্টারের নাম্বার বাড়ানো হয়েছে এবং সেন্টারের নাম্বার বাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে জেইর ক্ষেত্রে, যেখানে জানুয়ারিতে যে জেই মেন হয়েছিল সেখানে 570 সেন্টার ছিল, সেই সেন্টার্সের এখন নাম্বার হচ্ছে 660, যেখানে 8টা শিফটে এক্সাম হতো, নর্মাল ওয়েতে 8টা শিফটে এক্সাম হতো, যেটা এইবারে হবে 12টা শিফটে। এবং তার ফলে দেখা যাচ্ছে প্রতিটা শিফটে প্রতিটা সেন্টারে অন অ্যান অ্যাভারেজ 128 করে স্টুডেন্ট এক্সামিনেশন দেবে। এই সেন্টার বলতে কি বোঝানো যায়? ধরুন একটা স্কুল টাইপের একটা বড় বিল্ডিং, যেটাকে একটা সেন্টার হিসেবে কনসিডার করা হচ্ছে, যেখানে অন্তত 5 থেকে 10টা রুম অকুপাই করা যেতে পারে এই এক্সামিনেশনের জন্য, এবং সেখানে 128 জন স্টুডেন্ট এক্সাম দেবে অন অ্যান অ্যাভারেজ। এটা তো নিশ্চয়ই যে এক্সাম সেন্টার বড় সেখানে বেশি স্টুডেন্ট দেবে, যেখানে কম সেখানে কম স্টুডেন্ট দেবে। দেখা হয়েছে যে প্রতিটা সেন্টারে প্রতিটা রুমের মধ্যে, এটা যেহেতু কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশন, সেখানে প্রতিটা রুমের মধ্যে যেন নির্দিষ্ট দূরত্ব মেনটেন করে 10 থেকে 12টা কম্পিউটার রাখা হয় এবং সেখানে সেই কটা স্টুডেন্ট পরীক্ষা দেয়। মানে আমি বলতে চাইছি যে স্টুডেন্ট নাম্বার অফ স্টুডেন্ট প্রতিটা জায়গাতে কম করে রেখে পরীক্ষাটা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে বা হবে। নিটের ক্ষেত্রে 2546টা থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি সেন্টার ছিল, যেখানে করা হয়েছে 3842টা, অনেকটা বাড়ানো হয়েছে। এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে প্রতিটা সেন্টারে 415 জন করে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট এক্সাম দিতে পারে। ঠিক আছে, তার মানে আমরা আমাদের যে ট্রাভেলের ব্যাপারটা, এখন দেখুন গভর্নমেন্টের রেসপন্সিবিলিটি একটা বিরাট বড়। গভর্নমেন্ট যখন ডিসাইড করছে, সেটা স্টেট গভর্নমেন্ট হোক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোক, এরকম একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে যেখানে আমরা পিকে আছি বা পিকের কাছাকাছি আছি এফেক্টেড নাম্বারে, সেখানে গভর্নমেন্টকে একটা বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। আমরা ধরে নিচ্ছি গভর্নমেন্ট সেই বড় ভূমিকা পালন করবে। সেই ভূমিকাটা মেনলি হচ্ছে যে ট্রান্সপোর্ট। नॉर्थ बंगाल सर सिर्फ, लेकिन अब ये इस बात को समझने की जरूरत है कि सर क्या सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही एकमात्र परेशानी हो सकती है? डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही एकमात्र परेशानी हो सकती है? वो जो गार्जियंस जाएंगे, कई सारे राज्यों में बाढ़ की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, ये जो इतना बड़ा मॉब जमा होगा, सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर की हम बात नहीं कर सकते, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर भी जो इतना बड़ा मॉब जमा होगा, इस मॉब के जमा होने से संक्रमण के बढ़ने का खतरा नहीं बढ़ जाता है कहीं ना कहीं? पराग विश्वास जी। बेशक बढ़ता है, हम तो वही बोल रहे हैं बार बार। देखिए मिस्टर चक्रवर्ती, आई टोटली एग्री विथ हिम दैट द सेंटर्स, नंबर ऑफ सेंटर्स हैव बीन इंक्रीज्ड। मैंने ये कहा भी है, शायद वो मिस कर गए हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो स्थिति उत्पन्न हुई थी ना माइग्रेटरी लेबर्स के लिए, जिसको बंगला में परिযায়ী श्रमिक बोलते हैं, प्रवासी श्रमिक जो है, मजदूर जो है, आपको मालूम होगा, हम सब जानते हैं कि किस तरह की मौत हुई, लोगों को क्या हुआ नहीं हुआ। ये मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नंबर वन, एंड गैदरिंग इन अनदर प्लेस। अब विडंबना देखिए, शादियों में 50 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं, मातम में 20 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, पार्लियामेंट की सेशन नहीं हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट खुद डिजिटल हियरिंग पे निर्भर कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ये राय देती है, with due respect to the Supreme Court, to the apex court, that you have to hold examinations during this period. Why? The logic of those who are supporting is that the students will lose an year. Next year there will be double the number of students. एक्सपर्ट्स ने बार बार ये कहा है कि इससे कोई दबाव नहीं पड़ेगा,
रिशेड्यूल किया जा सकता है एग्जाम्स को। हाँ, ये बात सही है कि कब तक, कहां तक, तो ये बात तो पार्लियामेंट से पूछनी चाहिए कि कब तक, कहां तक, क्योंकि वहां पे देश का लेजिस्लेशन होता है। आपको नहीं लगता है कि लेजिस्लेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, द लॉ ऑफ द कंट्री, लॉ मेकिंग प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स? You can make doctors and engineers an year later, but you cannot stall the process of law making. यहाँ पर एक Judicial बात system खुद ये कर रही है। यहाँ पर एक बात और आती है, एक बात और होनी चाहिए, मैं समझता हूँ जो कि और वैक्सीन का मैं बता रहा हूँ, नहीं वैक्सीन पे बहुत बात हो रही है। जब इस यहाँ पे एक्चुअली ये नीट जेईई का चर्चा है ना, तो मैं वैक्सीन का प्रश्न ये आना नहीं चाह रहा था वहां पे। ये एक दूसरे चर्चे में हम बोलना चाह रहे थे इसको। सर हम वैक्सीन पर सर हम आराम से फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझना, we'll just touch out. Vaccine by November, the government of India will acquire vaccine and it will inoculate, it will start the process of inoculation. अब ये भी कहा जा रहा है कि the students will get it after an year. Now what will happen in COVID is very difficult to predict. नहीं ये सर, ये सारी बातें हैं, हम कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सक रहे इस वक्त, लेकिन अनसर्टेन है, बिल्कुल अनसर्टेन है। लेकिन इस बीच में ये समझना जरूरी है कि क्या ये जो दौर है, ये जो वक्त है, ये संकट का काल है। इस वक्त 0 ईयर नहीं घोषित किया जा सकता था। बिल्कुल 0 ईयर घोषित कर दिया जा सकता था। ये मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर चक्रवर्ती से कि सर क्या 0 ईयर नहीं घोषित किया जा सकता था? Just a minute, I will add, in top countries like France, Germany, USA, educational institutions are closed, and they are closed. Examinations have been stalled. You have to take a leaf out of their book. और ये सेंटर में तो जाहिर है ना, मैं सिलीगुड़ी में जाऊँ या दिल्ली में जाऊँ, इसका कोई गारंटी नहीं है। एरोसोल संक्रमण कहीं भी हो सकता है। मैं यहाँ पे घर में बैठा हूँ, 15 दिन ऐसे भी केसेस आए हैं कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना घर में बैठे हुए उनको भी कोविड पॉजिटिव हुए। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल, ये सारी चीजें तो अनसर्टेन हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन डॉक्टर साहब दीपू जी, better safe than be sorry. बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बताएं कि क्या 0 ईयर नहीं इसको बनाया जा सकता था? क्या इसकी संभावना कहीं नहीं दिख रही थी? एक्चुअली মিস্টার পরাগ যেরকম বলছিলেন আর কি, পৃথিবীর বহু ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজে পড়াশোনা হচ্ছে না, এখন বন্ধ আছে, এবং কবে এই সমস্ত হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন গুলো খুলবে তার কোনো ঠিক নেই। আমাদের দেশে এইটার একটা প্রবলেম আছে। প্রবলেমটা এটাই, সেটা হচ্ছে যে আমাদের নাম্বার অফ স্টুডেন্টস, টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্টস যদি কনসিডার করি, তাহলে বোথ মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এ হিউজ, এবং সেই অর্থে আমাদের যে অলরেডি এক্সিস্টিং যে আইআইটি বলুন, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বলুন বা মেডিকেল কলেজগুলো আছে, সেখানে একটা স্যাচুরেটেড লেভেলের স্টুডেন্ট থাকে। আমি বিদেশে দেখেছি যেখানে প্রতিজন টিচারের জন্য কতজন স্টুডেন্ট থাকে, সেই নাম্বারটা কিন্তু আমাদের দেশে অন্তত 5 থেকে 10 গুণ বেশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমাদের যদি এই বছরের স্টুডেন্ট গুলোকে আমরা ধরে নিই 0 ইয়ার অ্যানাউন্স করে, তাদেরকে নেক্সট ইয়ারে এক্সাম দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং তারা নেক্সট ইয়ারে তাদের একাডেমিক সেশন শুরু করা, তাহলে যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে দুটো একাডেমিক সেশন একসঙ্গে মার্চ করবে। এই মার্চ করলে নাম্বারটা কিন্তু ডাবল হবে। অলরেডি আইআইটি, অন্তত 3-4টে আইআইটি থেকে তাদের ফ্যাকাল্টিরা বলছেন যে তাদের কাছে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই যেখানে ডাবল নাম্বার অফ স্টুডেন্টস নিয়ে একই কোয়ালিটির তারা সার্ভিস দিতে পারে, স্পেশালি আইআইটি গুলোতে। অন্যান্য প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন গুলোকে কথা বাদ দিন, কারণ তাদের ক্ষেত্রে নাম্বারটা ম্যাটার করে না, তাদের ক্ষেত্রে স্টুডেন্ট নাম্বার অফ স্টুডেন্ট মানে মানি ম্যাটার করে। সুতরাং সেই জায়গাটাকে যদি বাদ দিয়ে দিই, তো আরেকটা যে ব্যাপার যেটা আমার খুব মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে যদিও যেই মেনের ক্ষেত্রে কোনো এজ বার নেই, নিটের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা স্পষ্ট এজ বার আছে, সেটা 25 ইয়ার্স নর্মাল জেনারেল স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে, এবং রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রে 30 ইয়ার্স। এখন যদি ধরে নিই যে বহু স্টুডেন্ট এরকম আছে যারা এডুকেশন ফিল্ডে থাকেন, তারা জানেন
যে বহু স্টুডেন্ট, এবং সেই নাম্বারটা হয়তো 1000 ক্রস করবে, যারা কিন্তু 23 ইয়ার্স 24 ইয়ার্স এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে থেকে পরীক্ষা দিচ্ছেন। তো সেই সমস্ত স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে কি হবে? তাহলে তার মানে যেটা দাঁড়াচ্ছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে একটা রুলস এন্ড রেগুলেশন কিন্তু পুরো চেঞ্জ করতে হবে। যদি এইটার ব্যাপারে রুলস এন্ড রেগুলেশন চেঞ্জ করে, তাহলে এই প্রবলেমটা সলভ হতে পারে, যে এজ সংক্রান্ত যে প্রবলেম। বাট যে প্রবলেম সলভ হবে না সেটা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সংক্রান্ত প্রবলেম। এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার সংক্রান্ত প্রবলেম কিন্তু সলভ হওয়ার নয়। তো তার ফলে নেক্সট ইয়ারে এই স্টুডেন্ট গুলোকে নিয়ে যাওয়া, এইটা কিন্তু খুব মানে ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট কোয়ালিটি অফ টিচিং এর জায়গা থেকে। যদি জি এটাকে সিম্পলিফাই করে যেটা বলা হচ্ছে যে একাডেমিক ইয়ার নষ্ট হচ্ছে, এই জি। একাডেমিক ইয়ার নষ্ট হওয়া বিষয়টা ততটা ইম্পর্টেন্ট নয়। কারণ একাডেমিক ইয়ার বলতে আমরা যেটাকে বুঝি, যেটা ইউজিসি বলে, সেটা लेकिन सर इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि किसी की भी जान के साथ हम खिलवाड़ न करें इस वक्त खास करके। मैं समझता हूँ कि এই इस बात को जी, भी बिल्कुल ध्यान में रखने की दीपू जी, जरूरत है। जी दीपू जी, I'll come in here, I'll come in here. मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं ये साझा नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ऑलरेडी आई हैव स्पोकन अबाउट द सुप्रीम कोर्ट. अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द लेजिस्लेशन. He has rightly said, as I said, that some legislation should be there, rules and regulations should be changed, age bar should be, age limit should be relaxed, right? मैं आपको बता रहा हूँ, Supreme Court is the apex body of the legal system in the country. I'll give you some interesting information. Common law admission test, I repeat, has been postponed. All India bar exams dealing with law and the legal structure has been postponed. Central University's common entrance test has been postponed. And when you come to Goa, I'll give another piece of information. If Goa has held its examinations, Maharashtra's B.Ed exam has been postponed. और एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि मान लीजिए एडमिशंस हो जाते हैं जी बच्चों का, मेरिट लिस्ट भी निकल जाती है. Is it possible to run classes entirely of courses like the medical and the engineering on online teaching? Is it possible? This is one question that I'm
अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।